If we are the chosen people, who are you to tell us what to do? Who are you? Who is the international community to tell Israel what to do? International law? Wonderful thing. It doesn't apply on us. It applies on any other place on earth, not on Israel. Because we are the chosen people. Don't you understand it? The second very deep-rooted value is obviously the value of we the victims, not only the biggest victims, but the only victims around. I know many occupations which were longer than Israeli occupation, than the Israeli occupation. Some were even more brutal, even though it's getting harder and harder to be more brutal than the Israeli occupation. I don't recall one occupation in which the occupier present himself as the victim. Not only the victim, the only victim. If to phrase here, if to quote here the late Golda Meir, whom I quoted also last time, I know, but it is so unforgettable I have to use it again. She once said that we will never forgive the Arabs for forcing us to kill their children. We are the victims. We are forced to kill their children. Poor us. And as the victim and the only victim in history, again, it enables us the rights to do whatever we want, and nobody is going to tell us what to do, because we are the only victims. To this, there is a third very deep-rooted value, and this is the very deep belief. Again, everyone will deny it, but if you scratch under the skin of almost every Israeli, you'll find it there. The Palestinians are not equal human beings like us. They are not like us. They don't love their children like us. They don't love life like us. They were born to kill. They are cruel. They are sadists. They have no values, no manners. Look how they kill us. This is very, very deep-rooted in Israeli society, and maybe that's the key issue. Because as long as this continues, nothing will move. As long as most of the Israelis don't perceive the Palestinians as equal human beings, we are so much better than them. We are so much developed than them. And we are so much human than them. As long as this is the case, all our dreams, and we have some dreams, and I'll get to them, all our dreams will never become true as long as this core issue will not change. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद बिलाल इफ्तिखार खान और आप देख रहे हैं स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ग्रुप। आज 7 अक्टूबर है और पिछले साल 8 अक्टूबर को आप जानते हैं कि हमास की तरफ से कुछ अटैक्स लॉन्च हुए, रिटेलिएटरी अटैक्स इजराइल के ऊपर, और गोया इजराइल उन्हीं अटैक्स का इंतज़ार कर रहा था। और उसके बाद एक ऐसा ऑपरेशन शुरू हुआ ग्रेटर इसराइल के लिए कि जिसके अंदर अभी 1 साल गुजरने के बाद तकरीबन 42,000 बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग और फ़लस्तीनी जो हैं जवान, वो शहीद हो चुके हैं। और गज़ा जो है, जिसके अंदर हमास की हुकूमत थी और हमास के उस हमले के बहाने से हमला किया गया, आज वो गज़ा एक मलबे का ढेर जो है उसका मंजर पेश कर रहा है, और कोई ऐसी बिल्डिंग नहीं है जो डैमेज होकर ज़मीन पे ना गिर गई। अब तो हालत ये हो चुकी है कि वो फ़लस्तीनी बेचारे जहाँ कैंप लगाते हैं, टेंट लगाते हैं, तो उसके ऊपर भी बॉम्बिंग होती है। सारे अस्पताल खत्म कर दिए गए हैं। यूएनओ के इंस्टॉलेशंस को नहीं छोड़ा गया, कोई जर्नलिस्ट नहीं छोड़े गए, उनको बेदरेग मारा गया। किसी जंग में इतने जर्नलिस्ट नहीं मारे गए जो पिछले 1 साल के अंदर इजरायली या सहूनी जो फौज है उसके हाथों मारे गए। दूसरी तरफ हमास का बहाना था तो गजा तक ही रहते, लेकिन हमने देखा उसके बाद ऐसे ही ऑपरेशन पीएलओ कंट्रोल्ड वेस्ट बैंक में भी शुरू हो गए, और वहां पे भी जिस किस्म की कार्रवाइयां डाली गई एट विल, जिस तरह जानवरों का शिकार किया जाता है उसी तरीके का इंसानों का शिकार किया गया। और अब तो हालत ये हो गई है, अल जजीरा की परसों की एक डॉक्यूमेंट्री के मुताबिक एक इतनी मॉरललेस और कैरेक्टरलेस फौज है इजराइल की, आईडीएफ, कि उन्होंने बच्चों को मारने, अपने जो गुनाह थे या वो जो इंसानियत के खिलाफ जराइम थे, उनको ना सिर्फ डॉक्यूमेंट किया बल्कि बड़े फख्र से टिकटॉक और दूसरे सोशल मीडिया आउटलेट्स के ऊपर पेश भी किया। अभी प्रोग्राम से पहले आपने एक शॉट देखा, उस शॉट में भी आपने देखा उसकी वजह क्या थी। उसकी वजह एक रेशियल सुपीरियरिटी और विक्टिम कार्ड, कि हम ही दुनिया के विक्टिम हैं, और गोल्डा मीर ने जैसे कहा कि ये हमें मजबूर करें कि हम इनके बच्चों को मारें। किसी जंग में ऐसा नहीं हुआ। कैप्टन अदीब साहब हमारे साथ हैं। आज हम उनसे पूछेंगे कि इस 1 साल के अंदर क्या हुआ, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर किस किस्म का जो हमने एक देखा, तब्दीली देखी, और हम उनसे पूछेंगे कि इस जंग के असरात क्या हुए, और हमने
वेस्ट की जो कि चैंपियन बना फिरता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से, बल्कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद से, इंसानी हकूक का, उसकी मनाफकत के पीछे क्या वजूहात? तो सर वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। सर 1 साल हो गया है आज गजा के अंदर जो कत्लेआम है जीनोसाइड को शुरू हुए। इस 1 साल के अंदर आप क्या देखते हैं, कहाँ पे इंसानियत फेल हुई और क्या वजूहात हैं कि 42,000 शहादतों अमवात के बावजूद अभी तक आलमी ज़मीर इस चीज का फैसला नहीं कर सका कि जो इसराइल कर रहा है वो जुल्म है या वो अपना हक जो है उसको इस्तेमाल कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल, बहुत ही रेलेवेंट और चुभता हुआ सवाल पूछा है आपने कि एक साल के अरसे में इतनी शहादतें या इतनी किलिंग्स मेरे ख्याल वर्ल्ड वॉर में भी नहीं हुई होंगी जितनी कि अपार्ट फ्रॉम ड्रॉपिंग ऑफ एटम बम जो उन्होंने गिरा था। अदरवाइज ऑन रेगुलर वॉर पे इतनी नहीं होती जितनी इन्होंने चुन चुन के उन तमाम चीज़ों को टारगेट किया है जिसका आप इंट्रोडक्शन में आप बता चुके हैं। और इसके बावजूद जो आपका सवाल था कि क्या वजह है कि आलमी ज़मीर अभी तक सो रहा है, मैं एक छोटी सी बात है, आज को आलमी ज़मीर तो बाद में जागेगा, हम लोग सो रहे हैं, हम कब जागेंगे? पहली बात तो यहाँ पर आ जाती, क्योंकि ये बड़ा एक फितरी अमल है बिलाल साहब कि व्हेन यू लोअर योर गार्ड द एनिमी इज इनकरेज मोर टू अटैक। जब से इसराइल की ये जहारियत शुरू हुई है, चाहे वो अरब इसराइली वॉर 7 की हो या बाद की हो या जहां भी इन्होंने फलस्तीनियों के साथ किया, आप अगर हिसाब लगाइए तो कब ये आपने देखा कि इसराइल को किसी किस्म का खौफ हमने दिलाया कि हम रिटेलिएट करेंगे, इसको बंद करो। क्योंकि बात यह है जब आप रिटेलिएट का इंदिया देंगे, उनको थ्रेट करेंगे और आप एक पॉलिटिकल विल शो करेंगे, वो उन मासूम फलस्तीनियों की एक शील्ड बन सकती है, उनको बचाया जा सकता है। जहां तक बाकी उम्मा का सवाल है, उनका भी यही हाल है, क्योंकि इफ दे आर, उनको इस चीज का जरा भी दर्द हो, जरा भी इसकी एहसास हो, शिद्दत हो, तो ये फिर उसके मुताबिक आप रिस्पॉन्ड करेंगे। जब आप रिस्पॉन्ड करेंगे तभी दूसरा जो है उसको रिएक्ट करेगा कि हाँ जी, हमें भी कोई खतरा है, हमें भी देखभाल से करना चाहिए था। इसराइल हैज ऑपरेटेड विद इम्प्यूनिटी सिंस इट केम इनटू बीइंग एंड इट कंटिन्यूज टू डू सो। सर ऐसा ही है सर। सर एक चीज मैं सोच रहा था, अभी जेन में आप बात कर रहे थे तो ख्याल आया कि हमने देखा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले लीग ऑफ नेशंस जो है वो खत्म हो गई थी। अभी भी दुनिया जो है एक रीजनल से नजर आ रहा है कि जिस तरीके से आलमी जंग की तरफ बढ़ रही है और जिस तरीके से यूएनओ को खत्म किया जा रहा है कि यूनाइटेड नेशन जो है उसका एक बड़ा काबिल एहतराम इदारा जो है वो नेतन्याहू को और इसराइल के जो वजीर आजम है उसे वॉर क्रिमिनल डिक्लेयर करता है। एक प्रोसीडिंग होती है, शवाहिद देखे जाते हैं और पूरी दुनिया के उसको के कैमरास जो हैं आंखें उस पर फिक्स हैं। लेकिन जिस तरीके से अमेरिका, जिस जो एक ड्राइविंग फोर्स थी और सबसे बड़ा हिस्सा भी यूएन के एक्सपेंसेस का वही दे रहे हैं, वो उस रूलिंग को, जो कि खुद बात करता है कि हम रूल बेस्ड ऑर्डर जाते हैं, जब वो देखता है कि चाइना उससे आगे निकल रहा है, रशिया उससे आगे निकल रहा है, जब वो देखता है कि उसकी जो नाइंसाफियां हैं उनके मुकाबले के अंदर दूसरे लोग आगे बढ़ रहे हैं रोकने के लिए और वो इंसाफ के रास्ते पे चलना चाह रहे हैं, तो वो कहता है कि जी मुझे रूल बेस्ड ऑर्डर दुनिया में लागू करना है। और ऐसा रूल बेस्ड ऑर्डर गजा की जंग प्रूव कर रही है कि जिसके अंदर कोई रूल्स नहीं है, रूल्स सिर्फ उनकी रूलिंग अलीट है, उसके इंटरेस्ट हैं और उसके अलावा कोई ऑर्डर नहीं है, किसी किस्म का कोई रूल नहीं। तो क्या आप देखते हैं कि जिस तरीके से यूएन को फेल करवा दिया गया और तारीख में पहली दफा यूएन सेक्रेटरी जनरल को ये कहा गया कि खबरदार तुमने इसराइल में कदम नहीं रखा, तो क्या यूएन खत्म हो रही है सर? हम ये कहें कि जिस तरह लीग ऑफ नेशन के फेलियर ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर को जन्म दिया, यूएनओ के फेलियर जो है वो अब हमें किसी बड़े तसादम की तरफ लेके जाएगा? वेरी वैलिड क्वेश्चन, और मैं इस पर बड़ा क्लियर हूँ यूएन के रोल पर। लीग ऑफ नेशन जो फेल हुई थी और जिन मकासद के लिए कायम हुई थी,
وہ اٹ واز unable to deliver that. اور اس میں یہی سب چیزیں ہو رہی تھیں جو ابھی آپ جس کے آپ نے نشاندہی کی ہے. ابھی آپ یو این کی بات کرتے ہیں. ایسٹ ٹیمور انڈونیشیا کا جزیرہ تھا, کتنی جلدی وہ اس کو آزادی دلا کے اس کی گورنمنٹ سیٹ کر کے کرسچین وہ تھا وہ انہوں نے کر دیا. اس کے برعکس مسلمانوں کی جو آپ کشمیر کو لے لیجئے, فلسطین کو لے لیجئے, ابھی تک یہ مسئلہ جو ہے یہ بنا ہوا. سو ویری کلیئر اٹ ہیز فیلڈ ٹو اسٹاپ the things for which it was created. ٹھیک ہے, نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ اس میں خاص طور پر جو مسلمان مملکتیں ہیں جو ان کی ممبر ہیں ان کے بالکل تحفظات ہونے چاہیے. بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو لیگ آف نیشن کی طرح ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ او آئی سی کی پلیٹ فارم کو اسٹرینگتھن کرتے ہوئے if there was a good leadership in the Muslim community, مسلم امہ میں, وہ اناؤنس کرتے کہ we are leaving United Nations because it is not doing that job جس کی وجہ سے ہوا. ہم اسے خیر بات کہتے ہیں, اور اس کا وجہ یہ کہ یو این کا تمام تر بجٹ جو ہے وہ امریکہ بیئر کرتا ہے. تو میری نظر میں ایک عرصے دراز سے کہہ رہا ہوں کہ امریکہ کی جو وائلیشن ہیں ہیومن رائٹس کی اور جتنی بھی جنگیں انہوں نے کی ہیں آفٹر ورلڈ وار 2 کچھ 13-14, ان کو لیگل کور پرووائڈ کرنے کے لیے ریزولوشن پاس کرتا ہے تاکہ وہ ان کو ایک کور مل جائے, چاہے وہ ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کے لیے ہو, چاہے وہ کسی آپ ایگزامپل ہے. always they have provided the legal cover for their illegal operations around the world. تو جواب سمپل ورڈ میں یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز میں سے جلد از جلد پہلا سٹیپ ہونا چاہیے. اگر مسلم امہ ایک انڈر اے گڈ لیڈر یہ ڈیسائیڈ کرے کہ وی وانٹ ٹو کوئٹ یو این, اس کو ختم کرو, اینڈ ہم نے اپنے تنظیم بنائی ہوئی ہے. بلال صاحب, وی ہیو گاٹ نو ڈیرتھ آف منی. سعودی عربیہ اور مڈل ایسٹ میں آ کر بہت پیسے ہیں. یو کین فنڈ, یو کین ریئلی رن اے پیرلل آرگنائزیشن لائک یو این. آپ کو تمام جتنی بھی مملکتیں ہیں ان کو آپ فنڈنگ کریں, ان کو آپ ساتھ لے کے چلیں اور ایک اسٹرانگ بیس بنا سکتے ہیں. سر سیکنڈ لاسٹ کوشچن کی طرف آؤں گا. 1 سال کے بعد کیا مڈل ایسٹ اور دنیا وہ زیادہ غیر محفوظ نہیں ہو گئی ہے کہ اب ہمیں کانفلکٹس جو ہیں وہ زیادہ بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ غزہ سے شروع ہونے والا جو کانفلکٹ تھا ہم نے دیکھا اس میں یمن آگے بڑھا, حزب اللہ آگے بڑھی اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے, ایران جو ہے وہ آگے بڑھا, اور اب حالات یہ ہیں کہ کسی بھی وقت جو ہے اسرائیلی اٹیک ہو سکتا ہے ایران کے اوپر. تو کیا اسرائیل کو اتنا یعنی کہ بگڑے ہوئے بچے کو تھپکیاں دے کے ڈونٹ یو تھنک ویسٹ اس چیز کا ذمہ دار نہیں ہوگا جو دنیا ایک گلوبل کانفلکٹ کی طرف بڑھ رہی ہے؟ دیکھیں گلوبل کانفلکٹ تو کئی فلیش پوائنٹس ہیں اس وقت اکراس دا گلوب جہاں پر یہ شروع ہو سکتی ہے. یوکرین از ون آف دیم. ایک زمانے میں کشمیر واز اے نیوکلیئر فلیش پوائنٹ, اور اب مڈل ایسٹ کا جو ہے تو یہ تو ہے, لیکن اس کا تمام تر دار و مدار ایک سائڈ پر نہیں ہے. اف یو ریمین سبمسو, یو ریمین سبجوگیٹڈ, یو ریمین اوبیڈینٹ سرونٹ, تو دین دیر از نو کانفلکٹ. کچھ نہیں ہوگا. آپ ایسے ہی شور مچاتے رہیے اور ایسے ہی کام کرتے رہیے. آپ کو جب دل چاہے گا وہ تھپڑ مار کے چپ کرا دیں گے, جب دل چاہے گا آپ کو ڈنڈا مار دیں گے, اینڈ یو کنٹینیو ٹو behave the way you have been behaving. ہم لوگ جو جتنے بھی مسلمان مملکت ہیں. لیکن کانفلکٹ تو اس وقت ہوگا جب someone stand up and says کہ نہیں جی یہ تو آپ وائلیٹ کر رہے ہیں, آپ کے ڈول سٹینڈرڈز ہیں, آپ دوغلے ہیں, آپ منافق ہیں, you are not giving the right treatment to our community, یہ ہمارے انٹرسٹ پروٹیکٹ نہیں کر رہے ہیں, UN is not doing the job that it was supposed to be doing. اس لیے then کانفلکٹ آئے گا. لیکن ابھی تک میری نظر میں اس طرح کا کوئی چانس نہیں ہے. سر میرا لاسٹ کوسچن ہے کہ غزہ ملیا میٹ ہو چکا ہے, کچھ ایسی سچویشن ہم دیکھ رہے ہیں ویسٹ بینک کے اندر بھی دیکھ رہے ہیں, آپریشن شروع ہے اور جس بے دردی سے بومنگ کی جا رہی ہے لبنان کے اوپر, ویسے لگ رہا ہے کہ لبنان کو بھی بہت جلد اگر دنیا کا عالمی ضمیر نہ جاگا تو یہ بھی غزہ کا ہی ایک منظر پیش کرے گا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو گریٹر اسرائیل کی جنگ چل رہی ہے تحفظ کے نام پہ, جہاں پہ وکٹم کارڈ کھیل کے
मजलूमों का खून से होली खेली जा रही है। क्या ये जंग रुक जाएगी लबनान और ईरान के ऊपर भी, अगर फॉर एग्जांपल कब्जा यानी कि ये न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, तो आपके ख्याल में क्या ये जंग रुक जाएगी या ये कंटिन्यू करेगी? देखिए, जंग रुकने के दो दो असबाब हो सकते हैं। नंबर एक, जो कुछ भी रही सही कसर है वो मार पीट के अपना अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर ले, और जो जहां तक उनकी दिल चाह रहा है अपनी खुशी से, बिकॉज देयर इज नो अपोजिशन, जहां तक वो चाहते हैं वो कर करा के जब तसल्ली हो जाएगी उनको तो वो चुप कर जाएंगे। तो उसी किस्म की बात हो रही है। अगर यहाँ पर इन्होंने रोक दिया तो ठीक है, और दूसरा तरीका ये है कि आप उनको बिफिटिंग रिस्पांस मिले जिसके खौफ से वो रुक जाएं और इस चीज को आगे मजीद नहीं होने दें। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सर बात ये है कि इस वक्त जो रजीम है वो रिलीजियसली जो है मोटिवेटेड है, जो इसराइल की है, और ग्रेटर इसराइल के मंसूबे के ऊपर काम जो है वो काफ़ी अरसे से चल रहा था। अब बहाना चाहिए था। अगर आप लोगों को याद हो तो ये गजा के हमले से कई साल पहले नेतन्याहू ने नक्शा दिखाया था यूएन के अंदर, जिसके अंदर फलस्तीन जो है कि जो इलाके हैं वो बिल्कुल नहीं थे, वो इसराइली दिखाया गया। तो बड़ी तेजी से उस साइट के ऊपर जा रहे हैं। इनका अपना इंटरेस्ट भी है, रिलीजियस इंटरेस्ट भी है। फिर आपको पता है कि गजा के अंदर गैस के जखायर जो हैं उसके साहिल पे, उनके ऊपर फिर लचाई नजरों से इस वक्त देख रहा है, यूरोप भी देख रहा है और इसराइल भी देख रहा है। तो मामलात अभी मजीद आगे बढ़ेंगे, और उसके अंदर यमन, लबनान और ईरान के अलावा जहां जहां तक ये क्लेम करते हैं, ये वहां पे मसाइल भी पैदा करेंगे और वहां पे कॉन्फ्लिक्ट्स भी पैदा करेंगे, यहाँ तक कि ग्रेटर इसराइल का ये ख्वाब अचीव करें। लेकिन क्या ये ख्वाब अचीव होगा, ये देखने की अभी बात है। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे मोहम्मद बिलाल इफ्तिखार खान और सर को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।